ایک وقت آئے گا ہم زندگی کے سفر میں مڑ کر واپس دیکھیں گے، بیٹھ جائیں گے اور کہیں مسکرا دیں گے، کہیں رو پڑیں گے، دیکھیں گے کتنا کچھ بدل چکا ہے۔ پھر خیال آئے گا کس سے رشتہ جوڑا تھا، کس سے منہ موڑا تھا، کسے کیا درد دیا تھا، کس نے سہارا دیا۔ سوچیں گے زندگی کا چھوٹا سا سفر تھا، کون اپنا بن کر زندگی میں آیا تھا، کس نے ہمیں اپنا بنایا تھا۔ ان سب سوچوں میں ایک ٹھیس اٹھے گی دل میں، جس کا ہمیں بہت پچھتاوا ہوگا۔ وہ کوئی ایسا کام، ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو آپ نے کھویا ہوگا یا جس کو آپ نے قبول کیا ہوگا۔ آپ آہیں بھریں گے اور زندگی کے سفر کو بے بس بیٹھے دیکھتے رہیں گے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جگرتے دیکھا تھا۔ سحر ابھی 5 سال کی تھی، دیکھا کرتی تھی باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ سحر کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سحر کو چھوڑ کر، عذاب سے بچ کر دنیا چھوڑ گئی۔ سحر پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی، اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ سحر 6 سال کی تھی، ابھی باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سحر پہ قیامت گرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی سحر، ننھے منھے سے ہاتھ، اس کو ابھی نہ اچھے کا علم نہ برے کا کچھ پتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہ پتا تھا ماں کہاں گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندہ بنتے دیکھا تھا، لیکن عورت کا ایسا روح کانپ اٹھے۔ سحر کو نہ بھی خود کھانا آتا تھا، نہ کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے نہ کرنا آتی تھی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کو بیٹی یاد بھی نہ رہی۔ بے حال لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو سحر کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ اب تو ماں کہاں تھی؟ اب وہ چھوٹی سی معصوم سحر صبح سے شام ہو جاتی کھیلتی رہتی، کھیلتے کھیلتے وہی زمین پر پری سو جاتی، کپڑے گندے، بکھرے ہوئے بال، بے حال ہوئی زمین پہ پری ہوتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ ایک بیٹی بھی پیدا کی ہوئی۔ وہ اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ سحر کو بھوک لگتی تو توتلی سی زبان میں بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ اس تیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے جا کر۔ سحر کھانا کھاتی، پھر دودھ کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ آج پہلا دن تھا۔ سحر رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی، مجھے دودھ کپ میں ڈال کر دو گرم کر کے۔ ستیلی ماں نے ایک آواز دی، نہیں ہے دودھ، دفع ہو جا۔ سحر نے چیخنا، رونا شروع کر دیا۔ جب ماں زندہ تھی تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تھی تو سحر ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی۔ اس بار اس نے ستیلی ماں کو مارا ہی تھا۔ ستیلی ماں نے زوردار تھپڑ سحر کو مار دیا۔ سحر دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا آپ لاڈ کرنے والی ماں نہیں ہے،
अब बाप के लिए फैसले शहर को जहन्नम में लेकर जाएंगे। शहर को होश आया, वो वहीं पड़ी थी। उसको सौतेली माँ से डर लगने लगा था। उसको बुखार हो चुका था। शहर को क्या पता था सरदर्द क्या होता है, बस बुखार से बेहाल थी। छोटी सी बच्ची माँ के बाद सांपों के रहमो करम पे थी। शहर ने एक दिन बाप से कहा, पापा मुझे ये गंदी आंटी मारती है। बाप ने कहा, तुम बात मान लिया करो ना, जिद ना किया करो। ना सौतेली बेजाने क्यों इतनी जालिम हो जाती है। अब शहर 10 साल की थी और वो इतना डरती थी सौतेली माँ से कि आवाज़ तक ना निकालती थी। कभी घर का सारा काम, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब कुछ 10 साल की शहर के ज़ुम्मे था। बाप माँ के लिए बिरूने मुल्क चला गया। शहर सौतेली माँ के रहमो करम पे थी। शहर रोती थी, जाती और रोया करती, या अल्लाह मेरी अम्मी को वापस भेज दो, मुझे बहुत मारती है ये आंटी। शहर की दुआएं शायद कब्र तक जाती हों और माँ तड़प उठती हो। एक दिन सौतेली माँ ने कहा, शहर मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। शहर बिखरे बाल, पुराने से कपड़े पहने हुए उसको अपनी होश कहाँ थी। छोटी सी उम्र में जुल्म ढाए जा रहे थे। कपड़े इस्त्री करते हुए अपना बाजू 3 जगह से जला लिया। आंसू आंखों से निकल रहे थे। दर्द से बेहाल थी, लेकिन सौतेली माँ का डर भी था। दर्द इतना शदीद था कि कमीज जल गई। माँ को पता चला, उसने थप्पड़ मार मार कर शहर का बुरा हाल कर दिया। सौतेली माँ गुस्से से कहने लगी, वो कुत्ती खुद तो मर गई, तुमको छोड़ गई मेरे सर पे बोझ। तुम भी मर गई होती तो अच्छा होता। शहर को कोई सीने से लगाने वाला नहीं था। कोई नहीं कहता था, मेरी बच्ची बस कर दो काम, थक गई होगी। 15 साल की हुई तो सौतेले भाई बहन स्कूल जाते थे। शहर देखती उनको, उनकी माँ अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार करती, खाना खिलाती, सीने से लगाती। शहर बहुत रोया करती, अम्मी जान तुम भी जिंदा होती तो मैं भी स्कूल जाती, मैं भी तेरे सीने से लगती। मेरे नखरे उठाती, वो आंसू साफ करती और घर के काम करने लगती। उस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा कोई अहमियत ना थी शहर की। 2 साल बाद बाप भी रूने मुल्क से घर आया। सब बच्चे बहुत खुश थे, शहर भी बहुत खुश थी। बाप ने सब कुछ सीने से लगाया, लेकिन शहर को ना लगाया। शहर उस दिन मुंह धोया हुआ था। पुराने से कपड़े जो ईद पे पहनती थी बाप की खुशी में पहने थे, लेकिन बाप ने एक नज़र मोहब्बत की शहर की तरफ ना देखा था। शहर खामोश खड़ी दीवार के साथ लगी खड़ी थी। बाप अपने दूसरे बच्चों को चूम रहा था। 2 बेटियां, 1 बेटा था। सबके लिए कुछ न कुछ लेके आया था। शहर बहुत खुश थी कि बाबा मेरे लिए भी कुछ लेकर आए होंगे। सबका बारी बारी सामान निकला। ये बेटी की डॉल, ये दूसरी बेटी की डॉल, ये बेटे के लिए वीडियो गेम। शहर खामोश थी कि शायद अब मेरा भी नाम लिया जाए, लेकिन उसको सौतेली माँ ने कहा, जाओ अपने बाप के लिए खाना लगाओ। शहर खामोश हो गई। बेजान सा जिस्म अब खुदा से कोई शिकवा भी ना किया करती थी। शहर माँ की यादों में जिंदा थी। बस अकेली बैठी माँ से बातें किया करती थी, शिकायत किया करती थी। कमरे में बैठी थी, कह रही थी, अम्मी जान देख लो, बाबा सबके कुछ न कुछ लेके आए।
मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो माँ की चूड़ियाँ संभाल कर रखी हुई सीने से लगाकर चूमने लगी। मामा बाज मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। माँ के बिना कौन पूछता है बच्चों को। सुतेली माँ ने बहुत जुल्म ढाए शहर पे। शहर 22 साल की हो चुकी थी। एक दिन शहर गली में किसी से बातें कर रही थी। माँ ने बहतान लगा दिया, ये किसी लड़के से बातें करती है। शहर ने कस्में दी, लेकिन वो बदबख्त औरत ने ना मानी। उसने शहर को बालों से पकड़ा और मारना शुरू किया। शहर चीख चीख कर तो रो रही थी। महल्ला इकट्ठा हो गया। सुतेली माँ ने उसकी इज्जत की दहजियाँ उड़ा दी। कहने लगी, ये बदचलन है कुत्ती। शहर जमीन पे बैठ गई। सर से खून बह रहा था। आज टूट गई थी शहर। मोहल्ले वाले खामोशी से सब चले गए। शहर का दिल चाहा कब्रिस्तान जाए और माँ को कब्र से निकाल के पूछे, बता मेरा क्या कसूर था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। मुझे पैदा करके मर गई हो। देखो आज मेरी इज्जत भी नीलाम कर दी गई। रोते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नाराज़ हूँ तुमसे। जब सब दुश्मन हो जाएं तो अल्लाह से यूं ही गिला शिकवे होते हैं, जैसे वो हमारे सामने हो और हम नाराज़ हों के हमको मना लेगा। रात का वक्त था। बैरून मुल्क से एक फ़ोन आया। सुतेली माँ ने फ़ोन उठाया और बताया गया है आपके शोहर का एक्सीडेंट हुआ है, कल उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। सुतेली माँ बयान कर कर के रोने लगी। दूसरे दिन बाप घर आया। एम्बुलेंस में रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, बस एक जिंदा लाश था। अब शहर ने देखा बाप की ऐसी हालत, वो रोने लगी। बेटी को बाप की फिक्र ज़रूर होती है। दिन गुजरते गए। घर में भूख का सेब होने लगा। सुतेली माँ को कुछ ना सूझ रहा था। एक दिन उसको एक औरत ने बताया, तुम्हारी वो शोहर की बेटी जवान है, तुमको पैसों की भी ज़रूरत है। एक ख़ानदान है, उनका बेटा अंधा है, 2 लाख रुपए तक दिला देती हूँ। उनसे अपनी बेटी की शादी उनके अंधे बेटे से करवा दो। सुतेली माँ ने कहा, सौदा तो फ़ायदे का है। उसने शहर से कहा, तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, मैंने शादी है तुम्हारी 10 दिन बाद। शहर ने पूछा, लड़का कौन है। सुतेली माँ ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा ही है, बस चुप रहो। शादी के एक दिन पहले शहर को पता चला उसका होने वाला शोहर अंधा है और सुतेली माँ ने बेचा है उसे। वो चीख चीख कर रोने लगी, या अल्लाह मुझ पे जुल्म ना डाल, मैं अब थक चुकी हूँ। या अल्लाह मुझ पे रहम कर, मैं खुदकुशी कर लूँगी अब। शादी का दिन था, बारात आई हुई थी। शहर अपनी माँ को याद कर रही थी। बाप चारपाई पे पड़ा था। शहर बाप के पास गई। बाप की तरफ बैठकर बेबसी से देखती रही। बारात आ गई। निकाह का वक्त था कि दूल्हा हार्ट अटैक हुआ और वहीं पे मर गया। वहाँ हर तरफ मातम बिछ गया। अब शादी का सारा इंतज़ाम था। शहर दुल्हन बनी बैठी थी। इसी अंधे लड़के का दूसरा भाई जो बैंक में मैनेजर था, उसने शहर को देखा हुआ था। शहर बस हालात की मारी थी, वरना वो बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, डिंपल पड़ते हुए गाल, बला की खूबसूरत थी। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, अम्मी अगर अब अल्लाह का खौफ है तो किसी की बेटी की ज़िंदगी को दाग ना लगाओ, मेरा निकाह करवा दो। तो शहर से सब ने फैसला किया, ठीक है शहर का निकाह दूल्हे के भाई से करवा देते हैं। शहर की शादी उस बैंक मैनेजर जवाब से हो गई। जवाब बहुत नेक दिल इंसान था। क्योंकि शहर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी भर के दर्द सितम ने इसे मैच्योर समझदार
बना दिया था। जवाद बेपनाह मोहब्बत करता था शहर से। शहर को सीने लगाता, शहर अपना हर दुख भूल जाती। जवाद शहर की वफादारी और मोहब्बत के सामने हार जाता। साल बाद अल्लाह ने इनको बेटा दिया। शहर का अब अपना घर था, गाड़ी थी, खुशियाँ थी, बेहद चाहने वाला शोहर था। एक दिन शहर बाप के घर गई, देखा बाप टूटी हुई चारपाई पे पड़ा। माँ घर पे नहीं है, घर का बुरा हाल है। बाप हिल नहीं सकता था, पखाने से कपड़े गंदे थे, मक्खियों ने घेरा हुआ था। शहर रोने लगी, बाप का माथा चूमा, कहने लगी, बाबा आपकी मोहब्बत की एक नज़र को तरस गई थी आपकी बेटी। आप दोनों की जिद की वजह से मैं बर्बाद हो गई। आप और अम्मी लड़ते थे और अम्मी दुनिया छोड़ गई और आपने मुझे जिंदा होते हुए भी मार दिया। बाबा बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते। जवाब पास खड़ा था, उन्होंने दिलासा दिया शहर को। शहर ने बाप को नहलाया, बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। इतने में सौतेली माँ आ गई, जो लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करती और बच्चों को पाल रही थी। शहर रोते हुए कहने लगी, दुआ करना माँ, तुम्हारी बेटी या बेटे की कोई बेटी हो और उसकी सौतेली माँ हो, उस पे मुझे से जुल्म ढाए जाए। सौतेली माँ चीख चीख कर रोने लगी, बेटी मुझे खूब माफ़ कर दे। शहर वहाँ से चली गई। अपनी नाह की जंग में बच्चों से गाफिल होने वाले मियाँ बीवी, इस कहानी को पढ़कर कुछ सीख लो। अगर गैरत जिंदा है तो अल्लाह सब कुछ देखता है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। बस जुल्म करने वालों, अपनी बारी का इंतज़ार करो। अल्लाह ताला हम सब को राह हदायत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
बुजुर्ग महंगा टिकट खरीदना चाहते थे। एजेंट इन्हें सस्ता टिकट देना चाहता था। वो दोनों मसलसल तकरार कर रहे थे। एजेंट बता रहा था, सर ये भी फर्स्ट क्लास है, ये आपको 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। लेकिन बुजुर्ग का कहना था, बेटा मैंने आपसे सस्ती टिकट का मुतालबा नहीं किया, मुझे ऐसी फर्स्ट क्लास चाहिए जिसमें बेड लगा हुआ हो। मैं हवाई सफ़र के दौरान बेड को एंजॉय करना चाहता हूँ। एजेंट ने इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, सर ये सीट भी पूरा बेड बन जाती है, आप इसे भी एंजॉय करेंगे, आप अपना पैसा बिला वजह ज़ाया ना करें। लेकिन बुजुर्ग डटे रहे। उनका कहना था, मैं महंगी तरीन सीट ही लूँगा। मैं ये तकरार मज़े से देख रहा था। तकरार के आखिर में फैसला हो गया। एजेंट ने बुजुर्ग को सीट दे दी। वो सीट इन्हें 13.5 लाख रुपए में पड़ी। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली, दस्तखत किए और चेक एजेंट के हवाले कर दिया। मैं इस फजूल खर्ची पर हैरान हो गया। मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी शख्स को इतना महंगा टिकट खरीदते देखा था। चनाचे मैंने उनसे माजरत की और आजिज़ी से पूछा, सर आप क्या करते हैं? वो मेरी तरफ मुड़े, गौर से मुझे देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। मैंने पूछा, आप रिटायर होने से पहले क्या करते थे? वो बड़े प्यार से बोले, मेरी कपड़े की दुकान थी। मैंने पूछा, दुकान या फैक्ट्री? वो बोले, 15 बाई 20 फुट की छोटी सी दुकान। मैंने पूछा, क्या ये आपका कुल कारोबार था? वो हंसकर बोले, हाँ 100%। मैंने रावलपिंडी में 40 साल कपड़ा बेचा। मैंने पूछा, आपके पास फिर लंबी चौड़ी ज़मीन जायदाद होगी? वो फौरन बोले, हरगिज़ नहीं, बस एक अबाही घर था और 2 दुकानें थी। दुकानें दोनों बेटों ने ले ली हैं। मकान मैंने आधा बेच दिया है और आधा बच्चों को दे दिया है। मैंने पूछा, क्या आप बच्चों के साथ रहते हैं? बोले, हरगिज़ नहीं, मैं 2 साल से होटल में रह रहा हूँ। साल में 1 बार मुल्क से बाहर जाता हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ और बस। मेरी हैरत आसमान को छूने लगी। मैंने अर्ज़ किया, फिर आपने इतना महंगा टिकट क्यों खरीदा? मैंने आज तक अमीर से अमीर तरीन लोगों को भी एक सफ़र पर 13.5 लाख रुपए का टिकट खरीदते नहीं देखा, और आप बज़ाहिर अमीर भी नहीं हैं। चनाचे मैं आपकी फजूल खर्ची पर हैरान हूँ। बुजुर्ग ने कहका लगाया और फिर ज़िंदगी का एक नया रुख मेरे सामने रख दिया। वो बोले, मैं रावलपिंडी में कपड़े का कारोबार करता था। दुकान अच्छी चल रही थी। 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बीवी नेक और घरेलू थी। मैं फैसलाबाद के एक मिल ओनर से कपड़ा खरीदता था और वो कपड़ा परचून में बेच देता था। मैं हफ्ते में 1 बार फैसलाबाद जाता था। मेरी इस आमदोरफ्त की वजह से वो मिल ओनर मेरा दोस्त बन गया। वो जब भी रावलपिंडी आता था, वो पीसी में ठहरता था, मुझे दावत देता था और मैं उसके साथ खाना खाता था। वो ग्रिल फिश बड़ी रगबत से खाता था। वो मुझे बताया करता था, वो दिन में 1 बार सालमन फिश ज़रूर खाता है। मैंने उसके साथ सालमन फिश खानी शुरू की तो मैं भी उसका आदी हो गया। मैं भी फिश खाने लगा। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर उस बेचारे का डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला पैदा हो गया। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए, फैक्ट्रियों में यूनियन बन गई, रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया और अगवाए बराए तवान और बत्ताखोरी भी शुरू होगी। बांग्लादेश ने इस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दिया। मेरा दोस्त बांग्लादेश गया।
बंगाली बिजनेसमैन के साथ जॉइंट वेंचर किया और अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट कर दी। वो बांग्लादेश में कामयाब हो गया, लेकिन फिर दोनों पार्टनर्स के दरमियान इख्तलाफ हुआ। मामला अदालत तक गया और बांग्लादेश की अदालत ने बंगाली बिजनेसमैन के हक में फैसला दे दिया। यूं वो बेचारा महल से फुटपाथ पर आ गिरा। वो वापस पाकिस्तान आ गया। फैसलाबाद में उस दौरान उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका था। वो यहाँ भी कोर्ट कचहरी में उलझ गया। बीवी ये अतराव चराव बर्दाश्त न कर सकी। वो बीमार हुई और इंतकाल कर गई। उसने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया। वो यूनिट बेटे के हवाले किया। बेटे ने वो बर्बाद कर दिया। दूसरे बेटे को कारोबार में डाला, वो भी नाकाम हुआ और बीवी बच्चों के लेकर कनाडा शिफ्ट हो गया। बड़ा बेटा नाकामी के बाद नशे का आदी हो गया। वो नशे के हाथों अस्पताल पहुंच गया। बेटी की शादी की, ससुराल ने घर मांग लिया। उसने अपना वाहद घर बेटी को दे दिया। यार दोस्त भाग गए और अजीज रिश्तेदार साइड पर हो गए और यूं वो बेचारा पूरी दुनिया में बेदस्तोपा हो गया। मैं उसके अरूज व जवाल का ऐनी शाहद था। वो खुदार था। उसने मुझसे मिलना भी तर्क कर दिया था, लेकिन मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर मिल लेता था। हम ग्रिल फिश खाते थे, पुराना वक्त याद करते थे और हंस रोकर अपने अपने ठिकाने पर आ जाते थे। वो जिंदगी के बोझ के साथ साथ चलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया जब किराए का मकान भी उसके बस की बात ना रहा। वो हकीकतन कोरी कोरी का मोहताज हो गया और फिर एक दिन वो गायब हो गया। मैं उसे तलाश करता रहा, लेकिन वो ना मिला। मैं अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया। मुझे एक दिन ईदी फाउंडेशन से फ़ोन आया। मुझे बताया गया, आपका एक अजीज़ शदीद अलालत में है, हमारे पास मौजूद है, आपसे मिलना चाहता है। मैं तशवीश के आलम में ईदी फाउंडेशन पहुंच गया। वो मुझे ओल्ड पीपल होम में ले गए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो अलालत के आलम में बिस्तर पर पड़ा था। दाढ़ी बरी हुई थी। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल का मर्ज है। दिल का मर्ज बेकाबू हो चुका था और वह हकीकतन हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके पास बैठ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और आस्ता आवाज़ में बोला, यार शकूर साहब, ग्रिल फिश खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैंने फिश के लिए लालच में उनको आपका नंबर दे दिया था। मैं आंखें पोंछता हुआ उठा, पीसी गया, ग्रिल फिश पैक कराई और उसके पास आ गया। उसने बड़ी मुद्दत बाद अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खाया। मैं उसके बाद रोज़ाना उसके पास जाता। हम ग्रिल फिश खाते और धूप में बैठकर गपशप करते। मैंने उसे अपने घर लाने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो बेहतर हो गया। वो अब चल फिर भी सकता था और अपने काम भी खुद कर सकता था। उसने उसके बाद अपनी बाकी ज़िंदगी ईदी फाउंडेशन के लिए वक्फ कर दी। वो ओल्ड पीपल होम में रहता था, बीमारों की खिदमत करता था, नमाज पढ़ता था और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था। हम दोनों हफ्ते में 1-2 बार होटल जाते थे, ग्रिल फिश खाते थे और काफ़ी पीते थे। ये रूटीन उसके मरने तक जारी रही। मैं उसे एक रात वापस छोड़कर आया। वो बिस्तर पर लेटा और फिर दोबारा न उठ सका। हमने उसके बच्चों से राब्ते की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। हमारे पास कनाडा वाले बेटे का नंबर नहीं था। दूसरा बेटा अस्पताल में जेर इलाज था, उसे होश नहीं था। बेटी खावंद और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप गई हुई थी। हमारे पास उसका राब्ता नंबर नहीं था। अजीज रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को बुलाने से उसने रोक दिया था। वो वसीयत करके मरा था, मेरी मौत की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और मेरे किसी अजीज रिश्तेदार को इत्तला नहीं दी जाएगी।
चनाचे अजनबी लोगों ने उसका जनाजा पढ़ाया। अजनबियों ने उसे कब्र में उतारा और अजनबी कब्रस्तान में उसे दफन कर दिया। मैं दोबारा अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया। मैंने एक दिन अपने बड़े बेटे को डांट दिया। बेटा बफर गया और बोला, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। यह फ़िक्रा सीधा मेरे सीने में लगा। मुझे अपने मरहूम दोस्त याद आ गया और एहसास हुआ ये सब माया है, ये सारा माया ख़त्म हो जाएगा। माल वो है जो आपने इस्तेमाल कर लिया और खुशी वो है जो आपने महसूस कर ली। और बस मेरी बीवी वफ़ौत हो चुकी थी, बच्चे शादीशुदा थे। मैंने दोनों बेटों को एक एक दुकान दे दी। मकान बाज़ार में आ चुका था। मैंने आधा मकान बेच दिया। मुझे 12 करोड़ रुपये मिले। मैं होटल में शिफ्ट हो गया। मैं अब आधा दिन ईदी फाउंडेशन में काम करता हूँ। सुबह शाम एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, ग्रिल फिश खाता हूँ, सूट पहनता हूँ, होटल की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। साल में एक बार महंगा तरीन टिकट लेकर मुल्क से बाहर जाता हूँ और चिल कर रहा हूँ। वो खामोश हो गए। मैं हैरत से उनकी तरफ देखता रहा और वो मुस्कुराते रहे। मैंने अर्ज़ किया, आप जिस तरह रकम उड़ा रहे हैं, ये 12 करोड़ कब तक आपका साथ देगी। बुजुर्ग ने कहका लगाया और बोले, साल का 1 करोड़ खर्च होता है। मेरा ख्याल है मैं 12 करोड़ से पहले फौत हो जाऊंगा। मैंने अर्ज़ किया, और आप अगर बच गए, अल्लाह ने अगर आपको लंबी ज़िंदगी दे दी तो। उन्होंने कहका लगाया और बोले, मैं भी अपने दोस्त की तरह ईदी फाउंडेशन शिफ्ट हो जाऊंगा। आप जैसे किसी दोस्त की मदद से हफ्ते में एक दिन ग्रिल फिश खाऊंगा और मौत के फरिश्ते का इंतज़ार करूंगा। खैर हो, खुश रहें, सलामत रहें। आखिर में मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जितना अल्लाह ने दिया है उसमें राज़ी रहें, खुश रहें। ये दुनिया फ़ानी है, इसको आखिर ख़त्म होना है। इसलिए बेहतर है आखिरत की तैयारी कर ली जाए। दुनिया की मालो दौलत यहीं रह जाएगी, इसको जमा करना छोड़ दें और आखिरत की फ़िक्र करें आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।